A very warm welcome to all my dear HS first year students. मैंने पहले आप लोगों को एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर लॉजिक एंड फिलॉसफी कोर्स का. सो आज से हम लोग अपने लॉजिक एंड फिलॉसफी क्लास स्टार्ट करेंगे. टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर. Okay, the first chapter of Unit 1. And what is the name of the chapter? The name of the chapter is Logic. Okay, Unit 1, Chapter 1, Logic. So मैं point wise जाऊंगी ताकि आप लोग easily समझ सकें. Okay, so let us start. सबसे पहला question. What is logic? The word logic is derived from where? Logic क्या है और logic जो word है वो कहाँ से आया है? Okay? The word logic is derived from a Greek word logike or logos. The word logic is derived from the Greek word. Okay, remember Greek word logike or logos. The word logic जो है it is derived from the Greek word logike or logos. Now what does this word logike means? It means word or thought. Logike का मतलब है word. Okay, जो हम लोग बात करते हैं words और thought. Clear? Once again, the first point जो आज हम लोगों ने सीखा है, the word logic is derived from where? The word logic is derived from the Greek word logike or logos, जिसका मतलब है word or thought. Clear? Now let us go to the definition of logic. What is logic? Logic is the science of the regulative laws of valid thought. Once again, logic is the science of the regulative laws of valid thought. Logic is the science of the regulative laws of valid thought. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि logic जो है it is the science of thought. Okay, and that also valid thought. The main scope of logic is valid thinking. Valid thinking is the main scope of logic. So what is logic? इसको अगर मैं simple language में आप लोगों को समझाऊं, then logic is the science of thought expressed in language. It is the science of valid thinking. Okay? So logic जो है, it is the science of thought. जो भी हम लोग करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम लोग पढ़े, हर सब्जेक्ट में लॉजिक का होना जरूरी है. बिकॉज लॉजिक मीन्स थिंकिंग, दैट ऑल्सो वैलिड थिंकिंग, करेक्ट थिंकिंग. अगर हम लोग लॉजिकली नहीं सोचेंगे, रैशनली नहीं सोचेंगे, तो फिर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट से नॉलेज ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. ठीक है? सो लॉजिक हमें करेक्ट थिंकिंग सिखाता है. टू थिंक इन अ करेक्ट वे, to find out the correct reasoning, to find out the correct cause of any effect. Okay, this we can do through logic. This we can do through correct thinking. So that is called logic. What is logic? अगर मैं simple word में फिर से समझाऊं what is logic? Logic का मतलब है correctly सोचना, rationally सोचना, logically सोचना. ठीक है? And if we define logic, then logic is the regulative laws of valid thinking or valid thought. Okay, fine. So let us go to the next point. अब तक हम लोगों ने सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ा है. एक, what is logic? दूसरा, from which word logic is derived. So 2 points are there. Both are clear, I suppose. So let us go to the third point. Now, logic is the science of thought. जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को डेफिनेशन बताया, लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट. राइट? नाउ व्हाट इज दिस थॉट? ये थॉट क्या है? इफ लॉजिक इज द साइंस ऑफ थॉट, देन व्हाट इज दिस थॉट? Thought is the
act of mind. Okay, thought or thinking is the act of mind. And why we need to think? Why we need to think? We need to think to obtain knowledge. हम लोग सोचते हैं क्योंकि हम लोग नॉलेज पाना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं नॉलेज. ओके, दैट्स व्हाई वी थिंक. सो व्हाट इज थॉट? Thought is the act of mind through which we obtain knowledge. It is the source of obtaining knowledge. Thinking is the way of obtaining knowledge. Clear? So what is thought? Thought is the act of mind through which we obtain knowledge. Now उस दिन मैंने अपने लाइव क्लास में भी आप लोगों को समझाया था what is knowledge. Knowledge क्या है? अगर through thinking हम लोग knowledge obtain करते हैं तो knowledge क्या है? Knowledge is the systematic form of ideas in our mind, stored in our mind. Knowledge is the systematic form of ideas stored in our mind. Okay, clear? So let us go to the next point. मैंने point wise लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसीलिए मैंने point wise लिखा है. ठीक है? So let us go to the next point. This we have already done. Thought is thinking. It is the act of mind to obtain knowledge. Through thought we obtain knowledge. Now from thought let us go to reasoning. What is reasoning? Reasoning is the main subject matter of logic. Reasoning is the main subject matter of logic. How does we define reasoning? Reasoning means passing from something known to something unknown. Once again, reasoning means passing from something known to something unknown. Now, what is reasoning? Reasoning क्या है? Reasoning logic का main subject matter है. It is the main subject matter of logic. So, if the question comes, what is the main subject matter of logic? Then your answer should be reasoning is the main subject matter of logic. ठीक है? Now, reasoning क्या है? Reasoning का मतलब है, in Bengali we used to say torko, in Sanskrit we say tark. Okay? So, reasoning का मतलब है questioning करना. क्यों questioning करना? क्योंकि जो human mind है, ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ डाउट्स. हमारा जो माइंड है वो हमेशा डाउट में रहता है. वी आर फुल ऑफ डाउट्स. ओके, और उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग हमेशा रीजनिंग करते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और तब तक पूछते रहते हैं जब तक कि हम लोग कन्विंस ना हो जाए. ओके, आंसर से जब तक हम लोग कन्विंस नहीं हो जाते तब तक हम लोग पूछते रहते हैं. थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी. सारा दिन में आप लोग जो भी अपने फ्रेंड से बात करते हो या फिर किसी से भी बात करते हो तो ज्यादातर हमारे बातों में क्वेश्चन ही होता है. राइट? क्यों, कैसे, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ. राइट? सो ज्यादातर हमारी बातों में क्वेश्चंस रहता है. क्यों क्वेश्चंस रहता है? क्योंकि ह्यूमन माइंड इज फुल ऑफ डाउट्स. हमारा जो माइंड वो फुल ऑफ डाउट्स है, इसलिए हम लोग हमेशा रीजनिंग करते रहते हैं ताकि उसका आंसर हमें मिल पाए और we get convinced. Until and unless we are convinced with the answer, we keep on asking. And reasoning is also the source of knowledge. It is also the source of knowledge. हम लोग क्यों क्वेश्चन करते हैं? ओके, क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि उससे हम लोगों को नॉलेज मिलता है और उस नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए वी कीप ऑन रीजनिंग, वी कीप ऑन आस्किंग. ओके, जैसे मैंने उस दिन आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, अगर रास्ते में आप लोगों को कोई फ्रेंड मिल जाए आपका, तो फिर आप लोग दूर से उस फ्रेंड को देख के ही आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ जा रहा है या फिर ये कहाँ जा रही है. राइट? आता है ना? नाउ कम ऑन, व्हेन दैट फ्रेंड कम क्लोजर टू यू, देन यू स्टार्ट आस्किंग इमीडिएटली. ही ऑल्सो विल आस्क टू यू एंड यू टू विल आस्क टू हिम कि कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग. नाउ सपोज उसने बोला कि सपोज मैं बैंक जा रहा हूँ. ओके, देन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम दिस आंसर विच यू गेट फ्रॉम योर फ्रेंड, उस आंसर को सुन के और एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि क्यों बैंक जा रहे हो.
राइट. देन मे बी ही सेड कि मुझे एक अकाउंट खोलना है. देन अगेन अनदर क्वेश्चन विल अराइज, क्यों अकाउंट खोलना है. देन ही विल से दैट मुझे थोड़ा सेविंग करना है, आई हैव टू सेव मनी. देन अगेन द क्वेश्चन अराइज, अभी से क्यों सेविंग करना है, राइट. So it keep on coming into our mind until and unless we are convinced with that person's answer. जब तक हम लोग कन्विंस नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग रीजनिंग करते रहते हैं, पूछते रहते हैं. और इन सब रीजनिंग से हमें क्या पता चला, ओके. तब आप दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि कैसे खोलते हैं अकाउंट, मुझे भी बोलो ताकि मैं भी एक खोल पाऊं, राइट. सो देन ही विल टेल यू हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक. ओके. सो इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहते हो. सो ये सारे क्वेश्चन तब तक पूछते रहोगे जब तक कि हम कन्विंस ना हो जाए. तो इस रीजनिंग के प्रोसेस में क्या हमें प्रॉफिट हुआ, यही प्रॉफिट हुआ कि हमें बहुत कुछ पता चला. सबसे पहले पता चला कि वो फ्रेंड जा कहाँ रहा है. फिर हमें पता चला कि बैंक में हम लोग सेविंग कर सकते हैं. ये भी हमें पता चला कि अकाउंट कैसे खोला जाता है बैंक में, राइट. सो ये सारे नॉलेज हम लोगों ने ऑब्टेन किया. कैसे ऑब्टेन किया? थ्रू रीजनिंग. जैसे मैंने पहले ही बताया है, हमारा जो माइंड है वो हमेशा फुल ऑफ डाउट्स रहता है. आप लोग अपने नॉर्मल लाइफ के बारे में ही सोचो, कोई भी कुछ बोलता है तो एट द एंड वी ऑलवेज क्वेश्चन बैक टू हिम कि क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, राइट. क्योंकि ये हमारा नेचर ही है. We will keep on asking until and unless we are satisfied or we are convinced with that person's answer and we obtain some knowledge from it. So reasoning is the main subject matter of logic and we always obtain knowledge through reasoning. ठीक है? Now if we want to define reasoning, तो हम लोग कैसे define करेंगे reasoning को? Reasoning means passing from something known to something unknown. जैसे मैंने पहले ही बताया है, reasoning means passing. से सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर मैं reasoning का बोलूं आप लोगों को, तो reasoning means passing from something known to something unknown. Now what is this passing from something known to something unknown? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कोई भी नॉलेज पाने के लिए उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज पहले से होना जरूरी है. ओके. कोई भी नॉलेज अगर आप लोगों को चाहिए तो उस नॉलेज को पाने के लिए उसका थोड़ा सा नॉलेज पहले से होना जरूरी है. फिर उस नॉलेज को ही हम लोग एज ए गाइड मान के फर्दर प्रोसीड करते हैं. अगर किसी चीज के बारे में हम लोगों को थोड़ा भी पता नहीं है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट थिंग और दैट प्लेस, तो फिर हम लोग कभी सोचेंगे ही नहीं उसके बारे में. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. तो फिर उससे हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे, राइट. इसीलिए कुछ भी जानने के लिए पहले हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होता है और उसी नॉलेज से हम लोग प्रोसीड करते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल. नाउ सपोज अगर कोई अच्छा मूवी आता है, ओके. तो जब कोई मूवी आता है एट दैट टाइम व्हाट दे डू, जो मूवी अगर आए और वो लोग साइलेंट रहे तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि कोई नया मूवी आ रहा है, हम लोगों को पता नहीं चलेगा, राइट. सो उस मूवी को देखने जाने के लिए पहले से हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कोई नया मूवी आया है, ओके. तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस मूवी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं. टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ओके. वी सी द मूवी क्लिप्स, द मूवी सॉन्ग्स इन टीवी एंड फ्रॉम देयर वी कम टू नो कि एक नया मूवी आ रहा है. जब हम लोग वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी में तब उससे हमें पता चलता है कि एक नया मूवी आ रहा है. सो फार व्हाट वी नो, सपोज कोई नया मूवी आया जिसका नाम लॉजिक है, पकड़ लेते हैं, ओके. ऐसा तो कोई मूवी आएगा नहीं, फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि उस मूवी का नाम लॉजिक है. नाउ उस मूवी को देखने के बाद, उस ट्रेलर को देखने के बाद, मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद हमें कितना कुछ पता है उस मूवी के बारे में. सिर्फ ट्रेलर को देखने के बाद शायद हमें पता होगा उस मूवी का नाम, जिसका नाम है लॉजिक, ठीक है. नाउ और क्या पता चलेगा, मे बी अगर हिंदी मूवी होगा
तो फिर उसमें कुछ सॉन्ग्स होंगे जो हम लोगों को पता होगा, उस मूवी का मे बी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, एक्ट्रेस, उन सब के बारे में पता होगा. सो दिस विल बी द नोन थिंग विच वी विल गेट बाय सीइंग द ट्रेलर ऑफ द मूवी. सो फ्रॉम दिस नोन कैन वी पास टू द अननोन. व्हाट इज अननोन हियर? अननोन क्या है इसमें? अननोन है द स्टोरी ऑफ द मूवी. ओके, सो कैन वी पास फ्रॉम दिस नोन टू अननोन? यस, वी कैन बाय वॉचिंग द मूवी. उस मूवी को देख के हम लोग वी कैन पास फ्रॉम दिस नोन टू अननोन. ओके, सो सिमिलरली किसी तरह की नॉलेज के बारे में आप लोग सोचो, उस नॉलेज को पाने के लिए पहले थोड़ा सा नोन होना जरूरी है. फ्रॉम दिस नोन वी कैन ऑलवेज पास टू द अननोन. फॉर एग्जाम्पल आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा नए नए फोन या फिर नए नए से कार्स, बाइक्स, ये सब से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. राइट, आजकल बहुत सारे मॉडल्स भी निकल रहे हैं. फोन पकड़ लेते हैं क्योंकि फोन हर किसी के पास आजकल होता है. तो आजकल बहुत सारे नए नए फोन्स आ रहे हैं मार्केट में. तो उन सब के बारे में तो हमको पता नहीं होता. पता कैसे चलता है? जब हम लोग उसके बारे में टीवी में देखते हैं, उसका एड देखते हैं, तब पता चलता है कि ऐसा कोई फोन आ रहा है. अगर हमें पता ही ना हो कि ऐसा कोई नया लेटेस्ट फोन आया है, तो फिर हम उसको खरीदने की या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. बट जब हम लोग उसके बारे में जानते हैं, टीवी में उसका एड देखते हैं, तब हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. ओके, उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पता चल गया कि ऐसा कोई फोन आ रहा है, नया फोन आ रहा है, इसका नाम सो एंड सो है. So from this known thing we try to pass to the unknown. Means what are the other features of the phone? Is it good? Shall we buy the phone? Okay. So इस तरह से in our practical life also कोई भी नॉलेज अगर हम लोगों को चाहिए तो उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा उस नॉलेज के उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमें होना जरूरी है. Then only we can pass to the unknown. So this is the process of obtaining knowledge. Passing from something known to something unknown. Any kind of knowledge, किसी तरह का भी नॉलेज ले लो, हर नॉलेज में ये जरूरी है. We have to pass from the known to the unknown. थोड़ा सा नॉलेज पहले हम लोगों को होता है, फिर उससे ही हम लोग धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं और ज्यादा जानने के लिए. और कैसे जानते हैं? थ्रू रीजनिंग, थ्रू क्वेश्चनिंग. ओके, और तब तक क्वेश्चनिंग हम लोग करते रहते हैं जब तक हमारा जो माइंड है वो सेटिस्फाई ना हो जाए, वो कन्विंस ना हो जाए, और उससे हम लोगों को जितना नॉलेज हम लोगों को चाहिए वो सारा नॉलेज हमें मिल ना जाए, तब तक हम लोग रीजनिंग करते रहते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, एंड रीजनिंग इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक, एंड रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग फ्रॉम समथिंग नोन टू समथिंग अननोन. ठीक है, क्लियर? सो आज के लिए इतना ही. हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने कितना सारा पॉइंट सीखा, क्या क्या सीखा. लेट अस रिवाइज आवर टुडेज क्लास. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा व्हाट इज लॉजिक. लॉजिक क्या है? सो लॉजिक इज द साइंस ऑफ द रेगुलेटिव लॉज ऑफ वैलिड थिंकिंग. इट इज द साइंस ऑफ थॉट एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज. ठीक है. दूसरा, logic is derived from the Greek word logike or logos, which means thought or words. तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा what is thought. Thought means thinking, and what is thinking? Thinking is the act of mind through which we obtain knowledge. ठीक है. Now चौथा पॉइंट, what is reasoning? Reasoning is the main subject matter of logic. Reasoning is the process of passing from something known to something unknown. Or without reasoning, we cannot obtain any knowledge. Human mind is a rational mind, and human mind is full of doubts. And to satisfy or convince our doubt, we keep on asking. Okay, we keep on reasoning, and we will keep on reasoning until and unless we are convinced with the answer, and we get the satisfied knowledge which we wanted to get. So that is the process of reasoning, and reasoning is the main subject matter of logic. I hope कि ये सारे points आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है. All the points are very very simple. Okay. फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर हम लोग अपने लाइव क्लास में इसको लेके फिर से डिस्कस कर सकते हैं. ये वीडियो देख के अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है
तो फिर आप लोग वो पॉइंट मार्क करके रखिए। कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन से पॉइंट में डाउट है। अदरवाइज वी विल डिस्कस इट इन आवर लाइव क्लास। ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।